Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the second chapter in geography, and the name of the chapter is globe, latitudes and longitudes. And in this chapter we have discussed about latitude, what do you mean by latitude. Then these latitudes are measured in degrees. We have also seen that there are some important parallels of latitude, and we have also discussed about the different heat zones of the earth. The different parts of the earth receive different heat and sunlight, and accordingly the whole world, we can say the whole globe, can be divided into three heat zones: the torrid zone, the temperate zone and the frigid zone. Okay, this is all about latitude. So latitude help us in locating any place, but only with the help of latitude we will not be able to understand, we will not be able to locate any place exactly. So we need longitudes also. So what is longitude? We have discussed about it. We know that all longitudes are equal in length, and the countries have agreed to accept the longitude which crosses through the Greenwich as the 0 degree longitude, which is known as prime meridian. And we have also seen that from this 0 degree longitude in the eastern direction, what happens, that 180 longitudes are drawn, and that 180 longitude, 180 east longitude is exactly opposite the 0 degree longitude. In the similar way, on the western side also longitudes are drawn, and the 180 degree west and 180 degree east is actually the same longitude, which is exactly opposite the 0 degree longitude. And this 180 degree east and 180 degree west, which is the same longitude, is known as the 180 degree longitude. It has no east no west, है ना, because both are same. तो यहाँ पर वन मोर थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि जो 0 डिग्री वाली जो लॉन्गिट्यूड है वो 180 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड के साथ मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाती है, एंड दिस सर्कल डिवाइड्स द वर्ल्ड, डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स vertically. The first or second, it's not in any order. The first one half is known as eastern hemisphere and the other half is known as western hemisphere. Okay, and now we know that the earth moves from west to east. So what happens, that the places which are on the eastern side of the meridian, of the prime meridian, are moving ahead, they are ahead of the time which is there at the 0 degree meridian, and the places which are behind this 0 degree meridian, actually they are behind the time also. There is before time, as we have seen कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का फर्क हो जाता है. On every 15 degree of longitude there is difference of 1 hour. So if there is 12 o'clock noon on the Greenwich, and then it will be 1 p.m. on 15 degree east meridian, and on 15 degree west meridian it will be 11 a.m. क्योंकि जो वेस्ट वाला मेरिडियन है, जो 15 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है, वो 1 घंटा पीछे चलेगा, और जो 15 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है वो 1 घंटा आगे चलेगा. तो अगर 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट पे 1 बजेगा, और 15 डिग्री जो वेस्ट है उस पे 11 बजेगा, है ना. और इस तरह से हमने ये भी देखा था कि जो 0 डिग्री पे अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो 180 डिग्री पे, जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री दूर है ना. तो ये पूरा जो आधा चक्कर लगाने में 12 घंटे लगे, तो 12 घंटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर दिन का समय है 12 बजे का, दोपहर का है, तो पीछे वाला जो 180 डिग्री है वहाँ पर 12 बजे मिडनाइट होगा. ठीक है, दोनों जगह 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री पे भी 12 बज रहे हैं
और 180 डिग्री मेरिडियन पे भी 12 बज रहे हैं, बट 0 डिग्री पे जो 12 बज रहा है वो दोपहर का 12 है, और 180 डिग्री पे जो 12 बज रहा है वो रात का 12 है। ठीक है, और इसी में एक चीज़ और आपको बताई गई, हम जस्ट रिकैपिचुलेटिंग, है ना। इसी में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब हम 180 डिग्री मेरिडियन को क्रॉस करते हैं तो एक्चुअली अगर हम ईस्ट से वेस्ट में क्रॉस करते हैं तो दैट इज लॉस ऑफ 1 डे, हम एक दिन पीछे चले जाते हैं कैलेंडर के हिसाब से, है ना। कैलेंडर के हिसाब से वी लूज 1 डे इफ वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट 180 डिग्री मेरिडियन। वहीं पर इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। और अगर हम वेस्ट से ईस्ट मूव करते हैं ऑन दैट इंटरनेशनल डेट लाइन तो हम एक दिन आगे हो जाते हैं, क्योंकि ईस्ट हमेशा आगे चलता है, वेस्ट हमेशा पीछे चलता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अर्थ मूव करती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टाइम। लॉन्गिट्यूड्स जो है वो किस तरह से उससे हम टाइम का हमें पता चलता है, ये हम समझ गए हैं। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया की जो अगर इंडिया का हम काफ़ी बड़ी कंट्री है हमारी, वी हैव साइज वाइज अगर हम देखें तो कंट्री इज़ बिग, है ना। तो कल की क्लास में जैसे हमने देखा था, इसका हमारी कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, और अगर नॉर्दर्न और सदर्न में देखें तो इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न में देखें तो आवर कंट्री इज सिचुएटेड कम्प्लीटली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वी आर नॉट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वी आर इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड हैं। तो कोई भी कंट्री ग्लोब पे है उसके ऊपर लॉन्गिट्यूड्स आएंगे, है ना, जो कि इमेजिनरी लाइन्स है। तो हमने कल देखा था कि जैसे इंडिया की मैप है, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड मैप, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग मैप, सो you should try to improve your drawing skill. You can do it, है ना। don't get any kind of inspiration from this drawing. ये अच्छी ड्राइंग नहीं है, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया, है ना, समझने के लिए ये आपको बताया जा रहा है। तो जो लॉन्गिट्यूड इंडिया के वेस्टर्न एंड को क्रॉस वेस्टर्न एंड से जो गुजरती है, जो द लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू द वेस्टर्न एंड ऑफ द कंट्री, इट्स वैल्यू इज 68 डिग्री ईस्ट, है ना। ये हमने कल भी देखा था। और जो ईस्टर्न एंड से क्रॉस करती है उसकी जो वैल्यू है वो है 68, यस। जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड से जो लॉन्गिट्यूड क्रॉस करती है उसकी क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 97 डिग्री ईस्ट। ये दोनों ईस्ट आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना। तो ये है हमारा वेस्टर्न एंड का लॉन्गिट्यूड और ये है हमारा ईस्टर्न एंड का लॉन्गिट्यूड। ओके, अब ये जो ईस्टर्न एंड का जो लॉन्गिट्यूड हम देख रहे हैं, इसको अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, 97 माइनस 68, तो क्या हमें मिलेगा? 29। तो इंडिया की लॉन्गिट्यूड का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 29 डिग्री, है ना। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 68 से स्टार्ट हो रहा है, 97 तक जा रहा है। तो ये जो 29 डिग्री हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो व्हाट डू यू नो, हमने क्या कहा था कि लोकल टाइम क्या होता है? किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेस पे जब सन जो है वो जैसे सन पड़ता है, सन का लाइट जो पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे, सन का जो रे पड़ता है उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम होता है उसको हम लोकल टाइम कहते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड पे, किसी भी लॉन्गिट्यूड पे सन का रे पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम होता है उसको हम लोकल टाइम कहते हैं। अगर सन का जो जैसे 12 नून में क्या होता है, सन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है ना। किसी भी जगह पे
12 बजे दिन में जो सन का जो पोजीशन होता है वो हाईएस्ट पोजीशन होता है, तो उस समय वो उस मेरिडियन पे बिल्कुल सीधा पड़ रहा होता है, और वो जो टाइम होता है उसको हम लोकल टाइम कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि ये जो 68 से यहाँ पर इस तरह से सारे मेरिडियन होंगे, 67, 60, 69, 68 से 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, ऐसे करके ये 97 पे पहुंचा, है ना। तो ये सारे दीज ऑल आर लॉन्गिट्यूड्स। अब हर लॉन्गिट्यूड पे सन का रे पड़ रहा है, तो हर लॉन्गिट्यूड पे तो अलग टाइम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरी कंट्री में टाइम अलग अलग होना चाहिए। एक टाइम कैसे होगा, होगा ना अलग अलग, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड पे सन का रे अलग तरीके से पड़ रहा है। सन का रे हर लॉन्गिट्यूड पे एक तरीके से तो पड़ नहीं रहा है, हर पे अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। तो हर लॉन्गिट्यूड पे जो लॉन्गिट्यूड जिस जगह को क्रॉस कर रही है वहां पर टाइम भी डिफरेंट होगा। तो एक्चुअली टाइम डिफरेंट होता है। अगर हम इस बात को, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, तो आई एम टेलिंग यू टू पे सम अटेंशन ऑन दिस इशू। आप क्या देखते होंगे कि जैसे अगर आपके कोई जान पहचान में, रिलेटिव्स में अगर कोई इधर रहता हो, गुजरात, महाराष्ट्र जैसी जगहों में कोई रहता हो, तो वहाँ पर क्या होता है, सनसेट जो होता है वो हम कहते हैं देर से होता है। 7 बजे तक बिल्कुल लाइट होता है रात में, शाम में। जब यहाँ पर 7 बजे हम लोग यूपी में हैं, अंधेरा होने लग जाता है, बट वहाँ पे 7, 7:30 तक लाइट रहती है। और सुबह भी यहाँ पर देर से होती है, सुबह में भी वही 7, 7:30 तक, 7 बजे तक अंधेरा होता है। इट डिपेंड्स, वो तो सीजन टू सीजन डिपेंड करता है। गर्मी में जल्दी होता है, सनराइज सनसेट देर से होता है। बट एक अगर हम इन दोनों जो हमारे छोर हैं, जो एंड है, वेस्टर्न एंड और ईस्टर्न एंड, वहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ सुबह भी देर से होती है और शाम भी देर से होता है। ठीक है, और अगर इधर हम अरुणाचल प्रदेश को देखें तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह भी जल्दी होती है और शाम जो होती है वो भी जल्दी होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये ईस्ट में है, ये सन को पहले फेस करता है ना। सन जो है, सन का रे पहले, ये सबसे जो हमारा 97 डिग्री ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड है उस पर सबसे पहले पड़ता है, इसलिए सबसे पहले सनराइज अरुणाचल में होता है। और सबसे लास्ट में सनराइज कहाँ होता है, जो हमारा वेस्टर्न एंड है, गुजरात, द्वारका, वहाँ सबसे लास्ट में सनराइज होता है, क्योंकि वो 68 डिग्री ईस्ट है, सबसे देर से वो सन के सामने आया, अगर सिर्फ इंडिया को हम देखें तो, है ना। तो ये टाइम का डिफरेंस होता है, लेकिन हम घड़ी में तो एक ही टाइम देखते हैं, है ना। सनराइज दोनों जगह पे अलग अलग टाइम पे होता है, करीब करीब 2 घंटे का अंतर होता है अरुणाचल और गुजरात के बीच में। अगर हम सनराइज में टाइम का जो डिफरेंस है वो देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 2 आवर डिफरेंस बिटवीन द सनराइज ऑफ दीज 2 प्लेसेस। तो ये जो 2 घंटे का डिफरेंस है वो हमारी घड़ी में तो नहीं दिखता है। घड़ी में तो जब भी हम देखते हैं तो जो टाइम अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा होता है वही टाइम गुजरात में भी दिखता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये जो हम कह रहे हैं कि हर लॉन्गिट्यूड पर टाइम अलग अलग है, दैट इज़ लोकल टाइम, है ना। हर लॉन्गिट्यूड पे टाइम अलग होता है, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड पे सन का रे डिफरेंट टाइम से पड़ता है, तो उसको हम लोकल टाइम कहते हैं, है ना। लेकिन अब अगर हम पूरी कंट्री में अलग अलग टाइम होगा तो यू कैन जस्ट थिंक कितना हमारे लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट होगा। ट्रेन की कैसे टाइमिंग फिक्स की जाएगी, जो कि मान लो सपोज एक ट्रेन अरुणाचल से स्टार्ट हो रही है और वो राजस्थान पहुंच रही है, अब वो कैसे उसकी टाइमिंग, पैसेंजर कैसे आएंगे उसमें। एरोप्लेन में भी यही प्रॉब्लम होगी। कोई भी मीटिंग शेड्यूल करना है डिफरेंट जगह के लोगों को, तो फिर मतलब लाइफ हमारी चल ही नहीं पाएगी, हर जगह अलग अलग टाइम, बहुत परेशानी आएगी, है ना। तो इस परेशानी से बचने के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी सुविधा के लिए, ताकि हमारी लाइफ में इस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ना आए, व्हाट इज डन दैट एक मीन निकाल लिया गया। मीन क्या कहते हैं, एक बीच का जो लॉन्गिट्यूड है उसको हमने निकाल लिया, जो बिल्कुल कंट्री के बीचों बीच से जाती है।
ठीक है। और ये जो बीचों बीच से जो कंट्री के जाती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ विल बी कैलकुलेट द longitude which passes exactly from middle of the country? कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का। इसके लिए हम क्या करेंगे, 68 डिग्री जो ईस्टर्न वेस्टर्न एंड वाला जो हमारा लॉन्गिट्यूड है और जो ईस्टर्न एंड वाला लॉन्गिट्यूड है, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने दोनों लॉन्गिट्यूड को ऐड कर दिया। क्या आएगा हमारा आंसर? 8 7 15 1 10 16 165। नाउ इसका हम क्या कर रहे हैं ना, हम एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज आपको आता होगा निकालना, है ना। हम एवरेज अगर निकालेंगे तो हमको मिड पॉइंट मिल जाएगा, मिड लाइन मिल जाएगा कि कौन सी वो बीच वाली लाइन है। तो 165 को अब हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा? 165 is divided by 2. 2 8 जा 16, 5 2 2 जा 4, 1.0 2 5 जा 10। तो 82.5 डिग्री वाली जो मेरिडियन है, that is the meridian which passes exactly from the middle of the country। ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, that meridian is considered as standard meridian। अब उस मेरिडियन पे जो टाइम हो रहा है उसको ही पूरी कंट्री में कंसिडर किया जाता है। इस बात पे बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जाता है कि 97 पे या 90 पे या 84 पे या 64 पे या 70 पे लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम हो रहा है, कैसे सन का रे फॉल कर रहा है। इट इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओनली what is taken into consideration that the ray of the sun which is falling on the 82.5 degree meridian, and accordingly the time is adjusted। पूरी कंट्री का टाइम उसी मेरिडियन के टाइम से गाइडेड होता है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला जो मेरिडियन है उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे। ये सारे मेरिडियन हमारे लिए किसी का इसको हम यूज नहीं करेंगे जब हम अपने कंट्री के टाइम को देखेंगे तो, है ना। और इस कारण से भले ही सनराइज में डिफरेंस हम देख रहे हैं कि दोनों अरुणाचल और द्वारका गुजरात में 2 घंटे का फर्क हो जा रहा है टाइम का, सनराइज में सनसेट में, लेकिन टाइम एक ही है। घड़ी में जो टाइम बताया जा रहा है दैट इज सेम, है ना। ये आपको समझना है। तो यहाँ पर हम जो बीच वाला मेरिडियन है बस उसको कंसिडर करेंगे। और ये जो बीच का मेरिडियन है वो कौन सा मेरिडियन है? 82.5 डिग्री का। इसको फिर से हम बना लें, है ना। है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा 68 डिग्री ईस्ट था और ये जो इधर है ये 97 डिग्री वेस्ट था, है ना। 97 डिग्री ईस्ट, दोनों ईस्ट है। तो अब इसका हमने क्या निकाल लिया? इसका हमने एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट निकाल लिया। दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 82.5 है। अब ये जो 82.5 हमारा आ रहा है, ये जो 82.5 डिग्री वाली जो मेरिडियन है वो जहाँ से क्रॉस करती है उसी को हम लोग मान लेते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, कि वहाँ पर जो टाइम हो रहा होता है उसी को पूरी कंट्री में कंसिडर किया जाता है। ये आपका हो गया 82.5। ये भी ईस्ट है ना। और ये इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। एंड द टाइम, द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री।
This is known as IST, Indian स्टैंडर्ड टाइम, IST। ठीक है, इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो लोकल टाइम है, दैट लोकल टाइम इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री एंड दिस इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और आपको ये जान के इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, अगर हम इसको देखें यूपी में, ये हमारे मिर्जापुर जो है वहाँ से ये क्रॉस करती है। ठीक है, तो वहाँ पर का जो सन का जो रे पड़ रहा है, जो टाइम हो रहा है, उसको पूरी कंट्री में माना जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। अब हम एक और चीज़ देखेंगे। सो इट इज़ अबाउट इंडिया। नाउ वी विल सी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हमने एक कंट्री को देखा, हमारी कंट्री, ठीक है, हमारी कंट्री में तो इतनी मतलब बड़ी कंट्री है, ठीक है, बट यू जस्ट इमेजिन कि जो इतनी बड़ी दुनिया है उसमें हम देख रहे हैं कैसे टाइम डिफरेंट होता है ना, अलग अलग टाइम्स होते हैं। ग्रीनविच पे जो टाइम होता है उससे आगे हम चल रहे होते हैं, ईस्ट वाले, वेस्ट वाले जो होते हैं वो उससे पीछे चल रहे होते हैं। ग्रीनविच के बिल्कुल पीछे जो 180 डिग्री होता है, वहाँ पे जस्ट उसका ऑपोजिट टाइम होता है। अगर वहाँ सुबह के 12 बजे हैं तो वहाँ रात के 12 बजते हैं। तो ऐसा ही एक सिचुएशन है जिसको हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। जैसे दो बच्चे हैं, कबीर है ना, और उसका फ्रेंड है आलोक। अब ये दोनों बच्चे क्रिकेट, दे लव क्रिकेट। ओके, अब कबीर जो है वो भोपाल में रहता है, ही लिव्स इन भोपाल, and now he is telling his friend that today he will not be able to sleep in the night. Why? Because there is a day-night cricket match between India and England. What do you mean by day-night cricket match? Day-night cricket match होने का क्या मतलब है? What does it mean? जब हम कहते हैं कि day-night cricket match है, इससे क्या मीन करते हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना है मैच है कहाँ। मैच जो है वो लंदन में है, ठीक है, और जो मैच है वो इट स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। ठीक है, ये जो डे नाइट मैच है इट इज इन लंदन एंड इट स्टार्टेड एट 2 PM, बट व्हेन इन लंदन इट्स 2 PM, एट दैट टाइम व्हाट इज द टाइम इन इंडिया? क्योंकि उस समय इंडिया में तो 2 नहीं बज रहा होगा, इंडिया तो आगे बढ़ गया है, बिकॉज इंडिया इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो और इंडिया का देखो जो हमारा एक्सटेंट स्टार्ट हो रहा है, हम उसको तो यहाँ से नहीं, उसको हम इससे कंसिडर करेंगे। 82.5 डिग्री है हमारा स्टैंडर्ड टाइम, तो 0 डिग्री मेरिडियन पे है, जो कि लंदन में है ग्रीनविच, है ना, वहाँ पर 0 डिग्री है। और हमारी इंडिया का जो टाइम है वो 82.5 डिग्री से कंसिडर किया जाता है। तो क्या हम क्या देखेंगे यहाँ पर कितने घंटे का अंतर हो जाएगा? अगर 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर होता है ना। इसको अगर आप मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो इट विल रिमेन देयर इन योर माइंड। यू कैन मेमोराइज ऑल्सो, रट भी सकते हैं आप, बट इट इज़ माई सजेशन that we try to understand. रटना is very आसान, rote learning is not something which is related to our intelligence or anything like that. याद होना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, समझना इम्पोर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लंदन जो है, लंदन में 2 बजे स्टार्ट हुआ है ना, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि 15 डिग्री पे क्या होता है कि 1 घंटे का डिफरेंस हो जाता है, 1 आवर का डिफरेंस हो जाता है। 15 डिग्री ईस्ट में 1 घंटा आगे, 15 डिग्री वेस्ट में 1 घंटा पीछे, है ना। तो अगर एक डिग्री पे कितने घंटे का अंतर हो जाएगा? 1/15, तो 82.5 डिग्री पे कितने घंटे का अंतर हो जाएगा? इसको भी हमने यूनिटरी सिस्टम से ही सॉल्व किया है। तो 82.5 डिग्री पे कितने घंटे का अंतर हो जाएगा? 1/15
इंटू 82.5। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आएगा हमारा आंसर? इसको मैं इधर लिख रही हूँ ताकि आपको सामने में पड़े। 1/15 इंटू 82.5, ठीक है। ये डेसिमल हमने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 15 से कट करेंगे। तो 15 से कट करेंगे तो 15 5 से कितना होता है? 75, है ना। तो 15 5 से 75 हुआ, और फिर इसमें कितना बच गया? 82 में से 75 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 7, है ना। फिर से ये हो गया 75, तो फिर से ये 50 टाइम्स में 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो 15 को हमने 82 815 से हमने 825 को कट कर दिया। 55 हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन 10 यहाँ पर बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 5.5, है ना। अब ये 5.5 आर का क्या मतलब होता है? जब हम आर के सेंस में 0.5 कह रहे हैं तो इसका मतलब होता है आधा घंटा, हाफ एन आवर। 0.5 मतलब हाफ, है ना। 0.5 का मतलब हाफ होता है। तो जहां पर हम 5.5 अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब 5 आवर प्लस हाफ आवर, यानी कि 5.5 घंटा। तो अगर लंदन में दोपहर के 2 बजे ये मैच स्टार्ट हो रहा है, तो हम उससे 5.5 घंटे आगे हैं। At 82.5 degree east meridian, it will be 5.5 hour ahead of the time which is there at the Greenwich। तो अगर ग्रीनविच पे 2 बजा है तो उससे हम 5.5 घंटा आगे कैसे करेंगे? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 एंड हाफ 7:30। तो इसका मतलब जो मैच है वो इंडिया में कितने बजे स्टार्ट हुआ? 7:30 PM, जो कि ग्रीनविच में 2 PM, लंदन में 2 PM में स्टार्ट हो रहा है। वो इंडिया में एक्चुअली जिस समय स्टार्ट हुआ तो हमारे घड़ी में क्या टाइम हो रहा था? 7:30, है ना। तो ये 7:30 में अगर मैच स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली वो रात तक मैच चलेगा, रात में मैच चलेगा। तो इसलिए इसको डे नाइट मैच कहा गया है, डे नाइट क्रिकेट मैच। तो ये आपको समझने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि क्यों इस तरह से टाइम का डिफरेंस होता है। एक कंट्री के अंदर तो हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि एक बीच का हमने मेरिडियन निकाल लिया, लेकिन किन्हीं 2 कंट्रीज के बीच में टाइम का डिफरेंस होता है। एक और चीज़ है यहाँ पे, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। जैसे अगर हम यूएसएसआर जैसे जो कंट्री, यूएसएसआर नॉट, अब तो नहीं है यूएसएसआर, रसिया जैसे कंट्रीज को अगर हम देखें तो ये इतनी बड़ी कंट्रीज है, इनका एरिया इतना बड़ा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम वहाँ पे एक ही स्टैंडर्ड टाइम रखा जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। अगर रसिया को हम देखें तो यू विल सी इट, कल भी आई टोल्ड यू ना, टुमारो ऑल्सो, पेज नंबर 14, यस इट्स पेज नंबर 14 में आपका जो मैप दिया हुआ है उसमें यू कैन सी कि रसिया जो है उसके टाइम जोन को अगर आप काउंट करेंगे तो 11 टाइम जोन्स है रसिया में। एरिया वाइज रसिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो रसिया में हम देखेंगे कि 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है, ठीक है, 11 स्टैंडर्ड टाइम है। उसके अकॉर्डिंगली मतलब कंट्री में 11 अलग अलग टाइम्स होते हैं अलग अलग जगहों पे। इसी तरह से जो अदर कंट्रीज है जैसे यूएसए भी बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ भी मोर देन 1 टाइम जोन है। और अगर पूरे अर्थ को हम देखें तो पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, और हर टाइम जोन में कितने घंटे? 1 घंटे। वही 15 डिग्री पे 15 डिग्री पे एक टाइम जोन, हर 15 डिग्री पे एक टाइम जोन। और एक टाइम जोन का मतलब क्या हुआ? उसमें 1 आवर का वो है, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको समझ में हो सकता है, कुछ चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आए। इट्स नॉट अ बिग डील, you just try to understand it because it is very much important and interesting also,
है ना, अगर समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस एंड just hopefully you will do the you will read the chapter and understand it. Okay.